हम है, सब लोग मुझे याद करते हैं। The reason I said that is, to me, it looks as if it's been many years since I've seen all of you. मैंने इसीलिए आप लोगों को ऐसा कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सालों के बाद मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। Very good. Nice to see all of you. And the brother who was comparing, I think, Brijesh, he's got a beautiful background with the plants and all that. I like that background. और भाई जो ब्रिजेश जो लीडिंग कर रहे हैं, उनके पीछे जो पत्ते वगैरह हरा-हरा और पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लग रहा है। And Sibir, your background is also beautiful. It's very standard, and your dress in the background suits so very well. You're merging very well with the background. Thank you so much, dear uncle. Okay, so let's continue with our meditation. Happy to be back here and happy to teach the word to you. As much as I learn from the foot of the Lord Jesus Christ, I'm transferring it all to you. I'm not holding back anything. I'm transferring everything to you, whatever the Lord gives me or the Holy Spirit gives me. और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। मैं परमेश्वर का चरणों में जो कुछ भी बैठ करके मैंने सुना है, सीखा है, वही बात सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। And today we will try and conclude the second chapter. We have seen 3 parts. We've seen the first chapter 2 parts, and the second chapter 1 part is over. We will try, God willing, and complete the second chapter today. और हम लोगों ने पहला अध्याय को देख चुके हैं। पहला अध्याय में 2 भागों को हम लोगों ने देखा था और दूसरा अध्याय में भी 2 भाग हैं। उसमें दूसरी भाग को आज हम लोग पढ़ करके समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। As much as I learned from this preparation and this presentation to all of you, I trust every one of us have been benefited through this minor prophet Malachi. और मैंने जितना कुछ भी सीखा है और आप लोगों को मैंने परमेश्वर का वचन से आप लोगों को मैंने शेयर किया है, मैं समझता हूं कि आप सब लोग इसमें से लाभवान हुए होंगे। I hope my voice is clear, Sibir. Yes, your voice is clear. All right. Okay. Today, we're going to touch upon a very important subject, which applies to our day-to-day lives from the second half of Malachi chapter 2. और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो मलाकी का उसका दूसरा अध्याय से हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे। And as I was preparing this, it dawned on me that this is so important for all of us, and particularly for the younger generation. It's an important subject today. So I think I'm sure as we have prayed, the Lord will lead us to understand this chapter well. और आज का जो अध्ययन है बहुत महत्वपूर्ण है और जब आप और मैं इस अध्याय को अध्ययन करने जा रहे हैं तो ये सब लोगों के लिए एक लाभवान होने वाला है और ये लाभकारी कैसे मेरे लिए ही नहीं बल्कि जो युवा पीढ़ी है उन लोगों के लिए भी लाभदायक होने वाला है। So we will now focus our attention on that particular portion, which is Malachi chapter 2 from verses 10 to 17. और आज हम लोग जो है मलाकी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 10वां पद से लेकर के 17वां पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। The caption of the subject is the call to faithfulness. और यहाँ का जो अध्ययन का जो सिरनाम है जो विश्वास योग्यता के लिए एक पुकार व बुलाहट। अंकल your video is not seen, that laptop has covered your video little more. Was it you can't see my face, now, is it? yes, now we can see you. Now you can. All right, so I'm Yes. sorry. All right, so what we find here is that the Judean priest, this letter was specifically to the people of Judah who have returned from exile. और ये जो लेटर है बा ये जो पत्री है ये जो एक याजक के जरिए लिखा गया है यहूदी याजकों के लिए और यदि यहूदी याजकों ने ही इस पत्री को लिखा है। All right. Now, these people, the priests or the people in the leadership or the Judean priests who were serving the Lord, they were unfaithful. They were not keeping up their commitment to the Lord.
और ये जो यहूदी के जो याजक गण थे, वे लोग जो याजक थे, वे लोग कभी भी मतलब परमेश्वर के सामने वो लोग पूजा बा आराधना बा जो बलि तो चढ़ाते थे, लेकिन वे लोग कभी भी विश्वास योग्यता के साथ काम नहीं करते थे। All right, so that is why you see the caption is the Lord is calling them to be faithful in the covenant they have made with their Lord God. और परमेश्वर इसीलिए उनको बुला रहा है कि जो परमेश्वर ने जो वाचा उन लोगों के साथ बांधा है, उसके लिए उनको विश्वास योग्यता के साथ पेश आने के लिए उनको पुकार रहा है। Okay, so I think it will be a little important for us to bring all of us to the context of these important subject that we're going to study today. और आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो पहले तो सबसे पहले हम इतिहास की ओर जा करके उसके विषय में थोड़ी देर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। After Moses, Joshua brought the Israelites into the promised land. और मूसा के बाद जो है यहोशू इज़राइल के लोगों को जो वाचा दिया हुआ जो देश है बा उन लोगों को जो परमेश्वर ने देने के लिए जो प्रॉमिस किया था वह वाचा बांधा था उस देश के और यहोशू लेकर के आया। They lived there for 490 years in the promised land. और जो वाचा बांधा हुआ जो कनान देश है उसमें वे लोग कम से कम 490 साल तक उस देश में रहे। And God finally had to judge them for their unfaithfulness, and He destabilized all of them whom He brought through Moses and finally Joshua. He had to destabilize all of them. और मेरे प्यारो जैसे कि वे लोग आकर के स्थिरता के साथ वो कनान देश में रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके अविश्वासता के कारण उन लोगों को तितर बितर करना पड़ा। The covenant that they made with the Lord God, that they will serve Him faithfully, they broke that covenant. So God had to intervene and do something to restore His people back. और मेरे प्यारो जो वे लोग परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधा था कि वे लोग विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन उन वाचा को उन्होंने तोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर उनको सुधारने के लिए ये सब कुछ परिस्थितियों से उनको जाना पड़ा And, था। and so the Lord allowed the Babylonian Empire through the leadership of King Nebuchadnezzar to come and plunder them and destroy that city, including the temple, and take them all as captives. और इसीलिए परमेश्वर ने बाबुल के देश के लोग और उसके साथ साथ बाबुल का राजा जो नेबुकदनेस्सर था उसको इज़राइल में आकर के लूटने के लिए और जो मंदिर और उसके साथ साथ देश को लूट जाने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुमति दिया था। The beautiful temple which Solomon had built was totally decimated, or it was brought to the ground. और मेरे प्यारो जो मंदिर की सुलेमान कितना सुंदर और सज्जित तरीके से उसको बनाया था उसको ढहा दिया गया, वह नष्ट कर दिया गया। Yes, the Lord had allowed it, and they were in captivity under Babylon and thereafter the Persian kingdom for 70 years. और परमेश्वर ने उनको इस बात को गुलामी में जाने के लिए उनको अलाउ किया, अनुमति दिया और वे लोग कम से कम 70 साल तक बाबुल में रह गए। And after 70 years, the Lord allowed the rulers of the Persian kingdom to allow these people to return back to their kingdom. और 70 साल पूरा होने के बाद परमेश्वर ने जो फारसी के लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर ने बात की और फिर उन लोगों को जो है इस बाबुल से इज़राइल के लोगों को इज़राइल में जाने के लिए फिर से अनुमति दे दिया। Yeah, so by the time they returned, they had rebuilt the temple, they built the walls of Jerusalem, and so it was an exciting time for them that they returned back and everything was happening as it was prophesied.
और मेरे प्यारो जे वे लोग जब वापस वहां पर आते हैं, आने के बाद वो मंदिर फिर से पुनर्निर्माण हो चुका है, वह हो रहा था। और जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार सब कुछ घटना हो रहा था। But what was happening is they realized, although these changes have taken place, although they've come back from exile, they realized they were still under the control of the Persian kingdom. और उनको ये पता चला कि यद्यपि वे लोग वापस लौट करके तो आए, लेकिन फिर भी फारसी लोगों के कंट्रोल में व फारसी लोगों के नीचे ही नियंत्रण में वे लोग अभी तक हैं। If you remember, when I took this study, I think 2, 3 classes earlier, the Lord was asking them, will you go and make such offerings to your governor? So that word governor refers to the Persian rule. You remember that? ओह यस वी रिमेम्बर। सो हम लोग इस बात को आपको याद होगा कि पिछले 2-3 क्लासेस में मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या अपना शासनकर्ता को बा आप लोगों के ऊपर जो अधिकार रख रहा है, शासन कर रहा है, उस व्यक्ति को ऐसा लड़े लंगड़े लूले वाले जो भोजन है या फिर जो बलि है, क्या वो उसको आप चढ़ावा देंगे क्या करके परमेश्वर पूछते हैं? क्या इस बात को आपको याद है ना? So, from that word terminology, governor, we can understand very well that they were still under the control of the Persian kingdom. और वहां पर जो शासनकर्ता जो लिखा गया है गवर्नर के तौर पर अधिकारी, तो हमें ये समझ में आता है कि वे लोग उन अधिकारी बा फारसी लोगों के नीचे बा फारसी लोगों के नियंत्रण में वे लोग शासित हो रहे थे। So, these people, when they returned back after 70 years of exile, the temple was built, the walls of Jerusalem were built. They thought, next, what is going to happen? All the Jews are going to come together, the Messiah is going to come, and the Messiah, which is the Lord Jesus Christ, is going to rule from that place. That was what they were thinking. और उनका सोच और विचार ये था, वे जब बाबुल का देश से 70 साल का बंधुआई से वे लोग जब छुटकारा पा करके आए, आने के पश्चात उनको ऐसा लगा कि मंदिर तो बन चुका है, यरूशलेम का जो शहरपना है वो भी बन चुकी है, तो अभी मसीहा आ करके उनके ऊपर जो है शासन करेगा। यही सोच और विचार और आकांक्षा और आशा उनके मन में था। There was nothing wrong in thinking because that was what was prophesied, that was what was promised. So there was nothing wrong in the way they were thinking like that. और वे लोग जो ऐसा सोच रहे थे उसका सोचने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही जो है भविष्यवाणी की गई थी। And when this happened, when they felt they were still under the captivity or under the control of Persian kingdom, they thought it's going to take time before the master, the Messiah comes, and they slowly started losing their hope and their faith in the Messiah coming back. सो मेरे प्यारो, जो आशा और आकांक्षा उनका जो मसीहा आने पर था, फिर बाद में वो आए नहीं तो फिर लेट होते जा रहा है। ये सब कुछ परिस्थितियों को देख करके उनका जो आशा और आकांक्षा था, वे लोग धीरे धीरे उस जो जोश में थे, वो लोग धीरे धीरे वो लोग खो बैठ रहे पर आ गए थे और इसीलिए वो परमेश्वर से दूर होते गए। Because of them losing their faith that the Messiah will come, they became discouraged. When they become discouraged, everything which they're doing for the Lord, they were doing namkivasa, or they were doing it in a lackadaisical attitude. ओ मेरे प्यारो, जैसे कि उनका विश्वास कमजोर होता गया, विश्वास वे लोग खो बैठ रहे थे और अभी जो कुछ भी वे लोग काम कर रहे थे, परमेश्वर के बलि उत्सर्ग कर रहे थे, सब कुछ वे लोग नाम के वास्ते ही सब काम कर रहे थे। We have the words of the Lord Jesus Christ who told us, the New Testament believers, behold, I come very quickly, is it not? मेरे प्यारो, हमारे पास जो है एक नया नियम में ऐसा पद को हम लोग प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वो क्या है? देखो मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूं। Yeah, and day after day, month after month, years after years, our predecessors, our grandparents, our parents, and we have been constantly waiting and waiting and waiting for the return of the Messiah, return of the Lord Jesus Christ. Is it not? मेरे प्यारो, क्या आप और जो है मैं प्रभु यीशु मसीह का आने का अभी भी हम लोग बाट जोड़े हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिता माता थे, उनके पिता माता, उनके पिता पता, ऐसा देखते देखते पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन की ताक और इंतजार में आप और मैं अभी भी बैठे हुए हैं।
in a similar situation, the people of Judah or the Judeans who were under exile, they were thinking about all these things when nothing was happening. They lost their interest, and so they broke their covenant which God had made with Moses and the children of Israel. और ऐसे ही जो इज़राइल के लोग भी क्या था ना, वे लोग इंतजार करते रहे, इंतजार कर रहे थे परमेश्वर व प्रभु का, जो मसीहा की आगमन नहीं हो रहा था, साम्राज्य स्थापन नहीं हो रही थी, इसीलिए वे लोग अपना विश्वास से वो लोग दूर हो रहे थे, हट रहे थे। और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो And परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो वाचा बांधा था, उन वाचाओं को वे लोग तोड़ने लगे थे। and the sacrifices which they're offering, namkevas they were offering. They had their heart was not in the sacrifice that they offered. जो बलिदान वे लोग चढ़ा रहे थे, वो बलिदान जो है नाम के वास्ते वे लोग चढ़ा रहे थे। यद्यपि वो बलि कर रहे थे, फिर भी नाम के वास्ते वे लोग चढ़ा रहे थे। उनका हृदय, उनका मन जो है उस बलि के ऊपर नहीं होता था। They were going to the temple, but their heart was not in why they are going to the temple, whom they're going to worship. Namkevas they were going. और यद्यपि वे लोग मंदिर तो जाते थे, लेकिन वे लोग मंदिर में नाम के वास्ते जाते थे, और वो जो है मन से वे लोग आराधना नहीं कर रहे थे। And everything which the Lord wanted them to do, they were doing. But their heart was not in what they were doing. They were just doing for the sake of doing it. और मेरे प्यारो, सब कुछ वे लोग कर रहे थे, परमेश्वर ने जो जो कहा था वो सब कर रहे थे, लेकिन उनका जो रुचि होनी थी, उनका जो एक लगाम होना था उसमें, बा जो एक दिल लगा करके काम करना था, वे लोग उस काम को कर नहीं पा रहे थे, नाम के वास्ते ही कर रहे थे। And despite them following the Lord faithfully, despite the unbelief they had, and for the sake of doing it, they felt that there was no result out of whatever they were doing. और मेरे प्यारो, जैसे कि वो लोग मन से व दिल से वे लोग उस काम को नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो काम नहीं करने के लिए, नहीं करने के वजह से ही कोई फल भी उनके जीवन में और वहां पर नहीं दिख रहा था। Then they realized that they were doing an empty religious way of worship. They felt that. और उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जो धार्मिकता का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो धार्मिकता का काम जो है व्यर्थ रूप से वे लोग काम कर रहे हैं। Now, this is the background. It is at this point in time that Malak, or the messenger, or the Malachi, the prophet, steps in. He enters in this background. और ये जो पृष्ठभूमि को आप लोग समझिए, ऐसा परिस्थिति में मलाकी जो है अभी प्रवेश कर रहा है। And through this letter, or through this message to the Judeans, Malachi was reminding them of their disobedient and their attitude towards the things of God. और इस पत्री बा इस जो है लेखन के जरिए मलाकी उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि वे कैसे परमेश्वर के लिए अविश्वस्त है। All right, so in this portion that we're going to read today, from verses 10 to 17 of Malachi chapter 2, there are two things which Malachi is bringing very forcefully upon the Judeans. और यहाँ पर जब हम लोग 10वां पद से लेकर के 17 पद तक जब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, दो मुख्य बातें जो है मलाकी हमारे लिए हमारे सामने ले आ रहे हैं। The first thing is intermarriage. और पहली चीज जो है उन लोगों के बीच में जो है शादी, विश्वासघात तक का शादी वे लोग कर रहे हैं। And the second important thing was divorce. और दूसरा बहुत मुख्य बातें हैं उन लोगों का जो त्याग देना व त्याग पत्र देना। Right. Now, we all understand both these terminologies, intermarriage and divorce, these days very well. और मेरे प्यारो, ये जो है आज अविश्वासी विश्वासियों के बीच में, और फिर एक जाति दूसरी जाति की और विश्वास शादी करना, और उसके साथ साथ जो है त्याग पत्र देना व डिवोर्स देना, आज हमारे दुनिया में भी, हमारे जमाने में भी बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। I can very humbly and boldly say that happens among believers also.
और मेरे प्यारों, मैं अभी बहुत धैर्य और धीरज के साथ इस बात को कह सकता हूं, हमारे विश्वासियों के बीच में भी ऐसे ही हो रहा है। So, whatever the Lord told the Judeans or the children of Judah through Malachi applies to us. It's for our learning, for my learning as well as your learning. सो मेरे प्यारों, जो मलाकी ने जिन जिन बातों को उन्होंने कहा है, ये आपके और मेरे लिए एक सीख का विषय है, जिससे आप और मैं सीख सकते हैं। All right. Right. Why is so much of focus that the Lord is giving to the Judeans about intermarriage and about divorce? We will understand today. और मेरे प्यारों, परमेश्वर क्यों ऐसे जो है अन्य जातियों के बीच में शादी और उसके साथ साथ जो त्याग पत्र के विषय में यहाँ पर कहता है, हम जब अध्ययन करेंगे तो आपको और मुझे समझ में आ जाएगा। Many a times this question is asked to us, why are you so strict? Why are you not considering this? Everyone is equal. Many times the question is asked to us as believers. I think today the Holy Spirit will help us understand from the Word of God why the Lord was specifically particular in addressing this to the Judeans about intermarriage and divorce. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज हमारे बीच में भी लोग ऐसे सवाल को ऐसा उठाते हैं कि वे और हम लोग जो है सबके सब बराबर हैं, तो फिर क्यों हमें शादी करने नहीं दिया जा रहा है। तो आज मलाकी का पुस्तक से आप और मैं अध्ययन करेंगे कि क्यों परमेश्वर हमसे जो है दूसरे लोगों के साथ शादी करने के लिए नहीं देते हैं। All right, so let's read the first three verses, 10, 11, and 12 from chapter 2 of Malachi. Let's read those three verses first to start with. और क्या आइए हम लोग मलाकी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 10वां पद से लेकर के हम लोग 13 पद तक जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवताओं की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं की यहोवा की भेंट चढ़ाने वालों को यहूदा से काट डालेगा। Thank you, brother. Now, God is charging his people or the Judeans with breaking the faith covenant that they made with him through Moses. और यहाँ पर जो है परमेश्वर बहुत कड़क रीति से उन लोगों को फटकार रहे हैं कि जो मूसा के जरिए उन लोगों का जो एक वाचा परमेश्वर ने बांधा था, उस वाचा को उन्होंने तोड़ा है। God was saying that what I specifically told you not to do, you are exactly doing that. और परमेश्वर इस बात को कहते हैं, जिस काम को कि आपको मैंने नहीं करने के लिए की है, उसका विपरीत ही तुम लोग कर रहे हो। In other words, the Lord was referring and saying, intermarriage with the people around you who are unbelievers, I have specifically laid down not to do it, and you're exactly doing that. और जो है आप लोगों के जो चारों और अविश्वासी लोग हैं, उन लोगों के साथ शादी करने के लिए मैंने मना किया है, फिर भी तुम लोग मना करने के बावजूद भी तुम लोग शादी कर रहे हो करके यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं। Because the people with whom you're intermarrying, they follow pagan gods. They're enveloped or they are so seeped in pagan and idol worship. और जिसके साथ तुम लोग शादी करते हो, वे लोग देवी देवताओं के पूजा करने वाले लोग हैं। वो लोग उसमें जो है भरे हुए हैं, मगन हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम शादी कर रहे हो करके कहते हैं। These pagan worshippers have a god for every little thing. और ये जो अन्य जाति के लोग हैं, हर चीज के लिए उनका भगवान है। And it so happened through these intermarriages, God's people, the chosen people of God, also started doing that.
और जो है शादी के पश्चात बस शादी के बाद जो परमेश्वर के चुने हुए लोग भी जो अन्य जाति के लोग जैसा काम कर रहे हैं वे लोग भी वही काम को करने लगे हैं। We can feel how God feels about this in these verses that we just read. और मेरे प्यारो अभी जिस अध्याय को हम लोगों ने अध्ययन किया है हम लोग भी ऐसे ही महसूस कर सकते हैं जैसे कि परमेश्वर महसूस करते हैं। You see in verse 11, see with the way in which God is responding. Verse 11, the first portion says, Judah has been unfaithful, and a detestable thing has been done in Israel and in Jerusalem. Note the word detestable. और आप देखिए 11 पद को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है। देखिए उस शब्द को देखिए, घृणित का जो शब्द है। A detestable thing is a very strong word. It's a very strong word. और जो है घृणित का काम करना उसका मतलब बहुत ही गंभीर और कठिन शब्द है मेरे प्यारो। In other words, detestable can mean an abomination, bringing slur on the name of God. और मेरे प्यारो यहां पर जो है घृणित का शब्द जो है अबोमिनेशन का शब्द के साथ बराबर है। अबोमिनेशन का मतलब ये होता है बहुत ही घृणित वस्तु जिसको कि परमेश्वर अशुद्ध मानता है, ऐसे कामों को उन्होंने किया है। The Lord is very upset because they are marrying with people of a different faith. Their beliefs are different, their faith is different, their way of worship is different. They are mingling with them and going about this intermarriage. That is what the Lord is very upset about. और परमेश्वर इस बात के लिए बहुत ही चिंतित है। परमेश्वर इस बात के लिए बहुत ही घृणित जो है उनको नफरत करने लगा है क्योंकि वे लोग अविश्वासियों के साथ जो है वो लोग शादी कर रहे हैं और उनका जो विश्वास है उनका विश्वास अलग है, उनका परमेश्वर अलग है, उनका व्यवहार बोलचाल अलग है। ऐसे लोगों के साथ वे लोग शादी कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर उनसे नफरत करने लगा है, घृणा कर रहा है। The Lord is upset not for without a reason, without a rhyme or reason. He's not upset without a rhyme or reason. He has mentioned specifically, which we'll read now, what he has mentioned and told the children of Israel to follow. मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है बिना कोई कारण से उन लोगों के ऊपर जो है घृणा करते हैं या फिर नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही उन लोगों को आज्ञा दे करके रखा था, इसीलिए परमेश्वर जो है उनके कामों को देख करके वो नफरत करने लगे हैं। और आइए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले क्या कहा था। Deuteronomy chapter 7 from verses 3 to 6, 3, 4, 5, 6. Deuteronomy 7, 3 to 6. और आइए हम लोग जो है व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 3रा पद से लेकर के 6वां पद तक हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 3रा पद से 7वां पद। और ना उनसे विवाह शादी करना ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में डाल जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। बस। Thank you for reading that. Now
You see in these verses very clearly, the Lord has specified in terms of marriage whom they have to marry, and he gives them the reasons there. और यहाँ पर इस बात को आप लोग बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया था किसके साथ उनको शादी करना चाहिए था। Because if they marry people from other ways of worship or other gods, they will draw the people of God away from the only living God, the only true God. और मेरे प्यारो, उनको शादी करने के लिए साफ तरीके से मना इसीलिए किया गया था क्योंकि वे यदि शादी करेंगे तो वे लोग जो है परमेश्वर से उनको व विश्वासियों को दूर ले जाएंगे, परमेश्वर से दूर कर देंगे। This is why God was very stern in using that terminology, and he said it is detestable, leading to blaspheming or leading to an abomination. That is why he used that strong word against the people of Judah. और इसीलिए परमेश्वर कहता है और इस बात को प्रयोग करता है, बहुत कठोर शब्द को परमेश्वर प्रयोग करते हैं कि जो घृणित है वे लोग घृणा की काम करने लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने जो है ये घृणा की बात थी, क्योंकि वे लोग जो अविश्वासियों के साथ शादी करने लगे थे। Verse 6 says, "You are a holy people and you belong to the Lord your God." और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुम तो पवित्र प्रजा हो और तुम लोग परमेश्वर यहोवा के जन हो। Now, if we read First Peter chapter 2 and verse 9, we know that verse very well. I think it is important to read it. Let's read that. First Peter chapter 2 and verse 9. और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 9वां पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। आप लोगों को ये बात जो है ये पद बहुत साफ तरीके से याद होगा। आइए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां पद। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। पहला पत्रस 2 का 9। 2:9. We are a peculiar treasure, a holy nation, isn't it? We have that in that verse. हाँ, यस। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। You see, the children of Israel or the people of Judah were a treasured people. They were a treasured possession of the Lord. और देखिए जो यहूदा के लोग थे वो परमेश्वर के निज प्रजा थे, वो परमेश्वर के निज धन थे। And through this act of intermarriage, they were taking that treasured possession and mingling it with the belief and structure that had nothing to do with the God of the universe. You see the background, you see why the Lord was very, very upset. और देखिए आप उनका परिस्थितियों को देखो, परमेश्वर क्यों उनसे जो है बहुत ही नफरत करने लगा है, परमेश्वर क्यों उनसे वो चिढ़ गया है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की निज प्रजा थे, लेकिन जो शादी करके परमेश्वर से वे लोग दूर होने लगे थे, इसीलिए परमेश्वर चिढ़ गया था। They were coming into a marriage union where God was not their God. You see, this is a very, very sensitive matter. That's why the Lord was reacting that way. और मेरे प्यारो देखिए वे लोग कैसे लोगों के साथ शादी करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर को मानते ही नहीं हैं, वो परमेश्वर यहोवा को नहीं मानने वाले लोगों के साथ वे लोग शादी कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर उनसे चिढ़े हुए थे अथवा बहुत ही नफरत करने लगे थे। You see in verse 4 he says, "For they will lead your children away from me." और वहां पर हम लोग देखते हैं चौथा पद में, तो अब वे लोग मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर देंगे। In English there is a saying, bad company corrupts good character. और अंग्रेजी में एक ऐसा कहावत है कि जो गलत संगति एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव को बिगाड़ देता है। Right, that is why the Lord was reacting, and that is why he is admonishing the Judeans, the people of Judah, in such very stern terms. और इसीलिए परमेश्वर जो यहूदा लोगों को सुधार रहे थे, उन लोगों को जो है बता रहे थे, ऐसे कड़क शब्दों में वे उनको जो है फटकार रहे थे।
All right, in verse 12, coming back to Malachi chapter 2 and verse 12. Let's read verse 12. आइए हम लोग 12 पद को पढ़ लेते हैं। मलाकी का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 12 पद के और हम लोग चलते हैं। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। Kat dalega. You see, that's another strong word which the Lord is using, that the Lord cut him off from the nation of Israel. और देखिए, जो लोग ऐसा घृणित काम करेंगे तो परमेश्वर इज़राइल से बा यहूदा से उनको काट डालेगा, उनको फेंक देगा। You see, the Lord was saying that they will have nothing to do with my people, with my treasured people, with my chosen people, with the people of Israel. They will have nothing to do with them. They have to be cut off from them. That's how stern he's talking. मेरे प्यारो, देखिए कितना कठोर और कठिन तरीके से परमेश्वर बात करते हैं। उन लोगों को काट दिया जाएगा, उनको जो है बाहर फेंक दिया जाएगा। वे लोग मेरे लोगों के साथ वे लोगों कैसे संबंध रख सकते हैं? और जो लोग ऐसा काम करेंगे तो उन लोगों को मैं काट करके फेंक दूंगा करके परमेश्वर कहते हैं। The question to all of us is, does this happen to us today? This is how the Lord feels even today, not only during that time when he wrote through Malachi, but this is how the Lord feels even today. तो मेरे प्यारो, अभी एक सवाल उठता है, परमेश्वर भी आज ही ऐसे ही महसूस करता है? परमेश्वर जो है पहले ही ऐसा महसूस करता था, ऐसा ही नहीं, बल्कि आज भी उनका सोच और विचार और सोच जो है वैसे ही है क्या? मेरे प्यारो, हमारा ऐसे ही रुख है क्या? परमेश्वर के प्रति हमारा रुख कैसा है? We live in very, very modern times. We live in an electronic age, and sometimes the question may come to us, does Lord really care the same way that he spoke about to the people of Judah? Does he still care? Does he care the same way for us even now? मेरे प्यारो, आज हम लोग एक ऐसा नए जमाने में हम लोग जी रहे हैं। वो जमाना जो है आजकल जो है यांत्रिक जमाना हो चुका है। सब कुछ जो है आज हमारे हाथों में, अपने हमारे अंगूठे में, हमारे उंगली में सब कुछ मिलता है। क्या आज के जमाने में भी परमेश्वर ऐसा ही महसूस करता है? ऐसा हमारे जीवन में जो है ऐसा डाउट आता है, संदेह उत्पन्न होता है। Okay, turn with me. Let's read from the New Testament, 2 Corinthians chapter 6. Let's read verse 14 and 15. आइए हम लोग दूसरा कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 16 और 17वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 16 और 17 पद। 14 and 15. 16 और 17 नहीं, 14 और 15। 14 and 15, huh? 14 और 15, माफ करना। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। बस। Okay, thank you. What we can see in verse 15, the second part of verse 15, how can a believer be a partner with an unbeliever? और हम लोग जो है 15 पद का जो दूसरे भाग में हम लोग इस पद को पढ़ते हैं कि एक अविश्वासी के साथ एक विश्वासी का क्या नाता। How can a believer have something in common with an unbeliever? और कैसे एक विश्वासी जो है एक अविश्वासी के साथ एक समान वो हो सकता है? Here, specifically, the Lord is talking about getting into a relationship. It does not say we should not love an unbeliever or we should not care for an unbeliever. It is talking about getting into a relationship with an unbeliever. Let's be very clear on that.
सो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है एक रिश्ता के विषय में नहीं कहा गया है, यहाँ पर शादी का रिश्ता के विषय में कहा गया है। आपको और मुझे जो है एक अविश्वासी को प्रेम करना, उसको ध्यान देना, और ये इसके विषय में नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ पर एक शादी का बंधन में बंधने का विषय यहाँ पर कहा गया है। The, yeah. Yeah, the way I have understood it as I read it many times is two things. One is it talks about a relationship through marriage. और मैंने जितना बार इस अध्याय को अध्ययन किया है, मैं इस तरीके से इस अध्याय को समझा है। पहला है, एक तो शादी के बंधन में बंधे जाना, And second is getting into any kind of business relationship with an unbeliever. और दूसरा है जो है कोई भी ऐसा व्यापार के रिश्ते में बंध जाना, व उसके साथ व्यापार करना। These two things are very, very important. और ये दो बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। Now, it does not mean, to clarify, it does not mean that you should not marry someone from another religion. It does not mean that. और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जो जाति है व धर्म है, ऐसे लोगों से तुम शादी नहीं करना। It is important that that person also has to be a believer. That is the underlying fact. और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए ना, विश्वासी होना बहुत आवश्यक है। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। A born again believer marries a born again believer. और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति दूसरा उद्धार पाए हुए व्यक्ति के साथ शादी करता है। All right. It's also important to know that when we get into any kind of worldly association in terms of business or commerce, it is important to bear in mind that a believer associates only with a believer. और हम जब व्यापार के माध्यम को भी हम लोग देखेंगे, तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ ही व्यापार करना बहुत अच्छी बात है। All right. Now, when we talk about this, it's important for us to recall the birthright which Esau had and which he sold it to his brother on a very flimsy ground. और हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु के पास जो है अपना बड़ा भाई का एक अधिकार था, उस अधिकार को उसने बेच दिया। For a bowl of soup, he gave the most precious right that an eldest son has in the family. और एक सबसे बड़ा बेटा का जो अधिकार होता है, एक जो है कटोरी सूप के लिए उसने जो है अपना जो अधिकार को उसने बेच डाला। That birthright which God had willed it for the eldest son Esau, because of his personal needs, he compromised on that and sold it. और मेरे प्यारो, उसका जो बड़ा बेटा का एक अधिकार होता है, उस अधिकार को अपना जरूरत के वजह से उसने उस अधिकार को बेच डाला। And that was in God's intention. That's how God had wanted it to be. और ये तो दूसरी तरीके देखा जाए तो फिर परमेश्वर की यही इच्छा थी, परमेश्वर ऐसे ही चाह रहा था। It is important for us to know whether is this what is happening amongst us today. सो मेरे प्यारो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आज क्या हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है क्या? Some of us say that a believer marrying an unbeliever is to bring that unbelieving person to Christ. और कुछ लोग हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी करता है इसीलिए कि उस अविश्वासी को विश्वास में ला पाए। Well, how do you know that that person is going to be saved? और मैं एक बात बताऊं कि आप मुझे ये बताओ कि वो व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा, इस बात को आपको कोई पता है क्या? The fact is you don't know that. वो सच्चाई ये है कि इस बात को आप नहीं जानते। You don't have a guarantee about that. और इस बात के लिए कोई सुनिश्चितता नहीं है, निश्चितता नहीं है। The fact is that unbelievers have a right to choose. You cannot force them to come your way.
मेरे प्यारो, जो अविश्वासी होता है उसके पास जो है अपने राहें, अपनी रास्ता चुनने का अधिकार होता है। उस व्यक्ति को आप कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। If they want to say no, they can say no. और वे लोग ना कहना चाहते हैं तो वो ना कह सकते हैं। You don't know. There is no guarantee. और हम इस बात को नहीं जानते, उनका कोई जो है गारंटी नहीं है। So marrying an unbeliever, thinking that you're going to save him after your marriage is not the idea of an ideal God-planned marriage. सो मेरे प्यारो, जो आप लोगों का सोच और विचार है कि शादी के बाद उस व्यक्ति को मैं उद्धार के अनुभव में लाऊंगा, ये तुम्हारी सोच और विचार है, लेकिन परमेश्वर का नियम और व्यवस्था के अनुसार वो नहीं है। Based on the word of God, it is gross disobedience, and it's nothing short of that. It's a disobedience to God's word. मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर का वचन से आप यदि देखेंगे, ये तो परमेश्वर का विरुद्धाचरण करना व परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के विरुद्ध जाना। The word of God says very clearly, do not be unequally yoked. और परमेश्वर का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि अविश्वासियों के साथ जो है असमानता में जोता ना जाओ, जुए में ना पड़ो। All right. Now, if we read verse 13 of Malachi chapter 2. और आइए हम लोग मलाकी का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 13 पद को पढ़ लेते हैं। All right. Now, क्या पता चलता है? till now, we were considering what the Lord was speaking very particularly about 2 aspects. One is intermarriage. और हम लोगों ने अभी 2 बातों को हम लोगों ने देख रहे थे। पहला है दूसरे जातियों से व अविश्वासियों से शादी करना। And we have seen why the Lord says it is an abomination in my sight. We have seen from the word of God. We have seen from the New Testament how it applies to you and me. और मेरे प्यारो, इस बात को हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर के लिए ये जो शादी है वो घृणित का वस्तु जैसा है। क्यों? क्योंकि जो है हम लोगों ने पुराना नियम से भी इस बात को देखा और नया नियम से भी हम लोग इस बात को देखा। All right, now let's quickly look at the second aspect which the Lord was speaking is about divorce. और दूसरी जो बात है जो त्याग देने के विषय में वो कहते हैं। So we read Malachi chapter 2 verses 13 and 14. आइए हम लोग मलाकी का पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ लेते हैं। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। All right, thank you. The second thing which the Lord is speaking now, he's moving to the issue of, he's addressing the issue of divorce in these 2 verses. और जो है हम लोग इस दोनों पद को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो त्याग देने के विषय में यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं। You see verse 14, let's read that verse very carefully. It says, because the Lord witnessed the vows you and your wife made when you were young. और इस बात को हम लोग देखते हैं जब तुम्हारी शादी हुई तो जब तुम जवान थे उस वक्त जो है परमेश्वर तुम दोनों के बीच में साक्षी बना था। What is this witness? और ये साक्षी बनने का मतलब क्या है? Now, in those days, and even in these days, when we sign a marriage register, when anyone gets married officially, when you sign a marriage register, what do? You call for 2 witnesses for each side, one for the boy's side, one for the girl's side, isn't it? और मेरे प्यारो, जब पुराने जमाने में शादी होता था, अभी वर्तमान में भी जो शादी होता है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तो लड़के के साइड से और दूसरा एक लड़की के साइड से हम लोग दोनों गवाहों को हम लोग पास में बुला करके उसमें दस्तखत लेते हैं।
Is that being done? Pardon me, uncle. Well, why is that being done? और क्यों ये किया जा रहा है? Because that witness is a witness that this boy and this girl are getting married, and they stand a witness to the place of marriage, the event of marriage, the day of marriage, the date of marriage, and in their presence they're getting married. और वे लोग इस तरीके से वो लोग दस्तखत लेते हैं, बा गवाह बन रहे हैं। वे लोग जो है उनका शादी का वे लोग गवाह बन रहे हैं, उस दिन का गवाह बन रहे हैं, उस घटना का गवाह बन रहे हैं, और उनका जो शादी का जो माहौल हो रहा है उस चीज का वे लोग गवाह बन रहे हैं। All right. Now, in every marriage, we as believers do know very well that there is an important witness in a marriage, and that is God is our marriage, is our witness. और मेरे प्यारो, हर शादियों में हमारा जो शादी होती है तो हम लोग ये जानते हैं, तो गवाह तो होते हैं बाहर से, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो गवाह है वो है परमेश्वर, हमारा जो शादी में गवाह होते हैं। We all know this very well. Those of us who are married know this very well. Apart from the man and the woman getting united, there's another person also who gets united with both the man and the woman, and that is God. और मेरे प्यारो, हम लोगों ने जितने लोगों ने शादी किया है, हम सभी लोगों को पता है कि जो आदमी लोग वहां पर जो खड़े होकर के गवाह होते हैं, उससे बढ़ करके एक व्यक्ति होता है उस स्त्री और पुरुष जो लड़का और लड़की के बीच में, वो है परमेश्वर। The marriage is being done in the presence of God, in the name of God. और जो शादी हो रहा है परमेश्वर के उपस्थिति में शादी हो रहा है, परमेश्वर के नाम से शादी हो रहा है। In other words, this God is a witness to our marriage. और दूसरी तरफ से देखा जाए तो परमेश्वर हमारा शादी में जो है गवाह है, बस साक्षी है। All right. That is why here in verse 14 the Lord says, the Lord witnessed the vows you and your wife made when you were young. That is, when you got married. और हम लोग देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहता है, तुम्हारे जो जवानी के समय में तुम और तुम्हारा जो स्त्री है शादी हो रहा था, उस वक्त परमेश्वर उसके साक्षी हैं, गवाह है। So when this verse, when the Lord is speaking to the Judeans, he's saying that I was a witness. I am a witness. I was there when you both got married. और इसीलिए यहूदा के लोगों को परमेश्वर कहते हैं, जब तुमने शादी किया उस वक्त मैं वहां पर उपस्थित था। And in a marriage, we know that are vows that are made by the bride and the vows that are made by the bridegroom. और हम लोग जो शादी में ऐसा होता है कि जो दुल्हन जो है परमेश्वर के नाम से वो कुछ जो वचन बांधती है, वाचा बांधती है, और उसके साथ साथ दुल्हा भी वाचा बांधता है। And the Lord is saying, I have heard that promise that you have made. और परमेश्वर इस बात को कहते हैं, हाँ, तुमने जो वाचा बांधा है, तुमने जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस को मैंने सुन लिया है। I was overseeing your marriage. और मेरा जो है तुम लोगों के दोनों के जो शादी का जो दूरदृष्टि मैंने किया है। And now when you come to divorce your wife, that was not in the vow. That is not what I agreed for. That is not what you both committed yourselves to. और मेरे प्यारो, अभी जब जो है तुम त्याग पत्र देने के लिए आए हो, इसके लिए तो मैं गवाह नहीं था, इसके लिए तो है तुम लोगों ने शादी नहीं की थी। तो यही बात को यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं। So God rises and says that I am a witness to both of you being faithful. You cannot divorce one another. और जो है इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम एक दूसरे के लिए विश्वस्त थे, और अभी तुम शादी करने के बाद एक दूसरे को त्याग नहीं दे सकते। We have to remind ourselves even today that every single marriage, I think the recent one is Deepu got married, and I'm 32 years since having got married. I think there are some of us on this meeting who are married for a long time. We know that God is our witness in every marriage. और मेरे प्यारो,
जब शादी के विषय में हम लोग देखते हैं तो भाई दीपू ने अभी वर्तमान में शादी किया है और अंकल ने शादी हो करके कम से कम 32 साल हो चुका है और बहुत सारे लोग वहां पर है, तो हर एक शादी में परमेश्वर गवाह है। Remember this thing. It is a tripartite agreement or a covenant, tripartite covenant, which is a threesome covenant in a marriage. और मेरे प्यारो, एक बात को आपको और मुझे ध्यान रखना आवश्यक है, जो शादी होता है इसमें त्रिकोण तरीके से जो है एक वाचा बांधा जाता है। Yeah, it is not just between a man and a woman. There is a third person called God. So there is a tripartite covenant in a marriage when that occurs. और मेरे प्यारो, ये जो शादी होता है दोनों, एक लड़का और लड़की के बाद दूल्हा और दुल्हन के बीच में ही नहीं, बल्कि तीसरा व्यक्ति उसमें गवाह होता है जो बंधन में बांधा जाता है और वाचा बांधी जाती है। उस वक्त हम जो समझ सकते हैं कि परमेश्वर भी उसमें शामिल है। And in verse 14, God is reminding the Judeans and saying that you have made a covenant to each other, and I am a witness and a testimony to this. You cannot break that covenant. और 14 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं, तुम्हारा जब शादी हो रहा था उस वक्त जो है तुम दोनों ने वाचा बांधा है और उसमें मैं उसका गवाह हूं, साक्षी हूं, और उस शादी को तुम तोड़ नहीं सकते, तुम त्याग नहीं दे सकते। You see how important and how sensitive this matter of marriage is in the presence of God. और आप देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर के सामने जो शादी हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। Particularly, it cannot happen in the life of believers. और हम सही तरीके से देखें, बस सही मायने में देखें तो विश्वासी के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। Because it is a covenant entered upon between you and your wife and God. A believer can never break this and go for a divorce. और मेरे प्यारो, ये जो वाचा आप दोनों ने बांधा है, ये आपके और जो है परमेश्वर के बीच में वाचा बांधी गई है और आप और मैं कभी भी त्याग पत्र नहीं दे सकते हैं। The difference in a Christian marriage is that God is present. God is the witness. All the marriage vows are taken in the presence of God, and God is in a tripartite agreement with the husband and the wife. और मेरे प्यारो, जो शादी हो रहा है वो शादी में, हर एक शादी में ओके, परमेश्वर ही उसमें गवाह है। ये जो है त्रिकोणीय एक बंधन में हम लोग बांधे हैं और इसको हम त्याग पत्र नहीं दे सकते। All of us remember the first marriage in the Bible, isn't it? और हम सब लोगों को याद है जो पहली शादी है जो बाइबल में है कि नहीं? The first marriage happened in the Garden of Eden. और जो पहला शादी है एदन वाटिका में हुआ था। Who arranged that marriage? और इस शादी को किसने आयोजित किया था? It was God. और ये जो है परमेश्वर ने आयोजन किया था। Marriage is God's institution. और जो शादी है ये परमेश्वर के द्वारा स्थापना किया जाता है। It was God designed. और ये जो शादी है परमेश्वर ही उसको डिजाइन करते हैं। And a divorce is going against God and God's plan and God's institution. और मेरे प्यारो, ये जो डिवोर्स है, त्याग देना, ये परमेश्वर का जो बनाया हुआ योजना के खिलाफ जाना। Okay, let's read Proverbs chapter 2, verses 16 and 17. Proverbs 2, 16 and 17. आइए उसका नीति वचन, उसका दूसरा अध्याय 16 और 17वां पद को पढ़ लेते हैं। नीति वचन उसका दूसरा अध्याय 16 और 17वां पद को। 16 और 17 दूसरा अध्याय। यस। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं जो उसके पास जाते। You see, verse 17 says, the covenant she made before God.
और आप 17 पद को देखिए, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। As believers, we cannot ignore the covenant we made before God's presence. We cannot और ignore that. और मेरे प्यारो, जो परमेश्वर के सामने हमने जो वाचा बांधी है, उस बात को आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। All right, let's go back to Malachi chapter 2 and let's read verse 15. आइए मलाकी का पुस्तक फिर से दूसरा अध्याय और उसका 15 पद के और हम लोग चलते हैं। मलाकी दूसरा अध्याय 15 पद। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्मा उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम भी अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। There is one important shabd, or there's an important phrase here which we must note in verse 15. और 15 पद में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द को हम लोग देख सकते हैं। उस बात को हमें नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। In body and spirit, you are his. और हम लोग इस बात को देखते हैं, तुम अपना शरीर और आत्मा में तुम उसके हो। I'm reading it once again. In body and spirit, you are his. और हम लोग देखते हैं कि तुम अपना शरीर से और तुम अपनी आत्मा से तुम उसके हो। It means the husband and wife, they belong to the Lord. They are God's property. और मेरे प्यारो, उसका मतलब ये दर्शाता है जो पति और पत्नी वे परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर के प्रॉपर्टी है। मेरे You see प्यारो, how solemn, yes, how solemn, how sacred this thought is. मेरे प्यारो देखिए, ये जो सोच और विचार है कितनी पवित्र है, कितनी अनमोल है। Remember this clearly. It is not just the husband and wife joined together, they unite, they consummate their love in the physical union. It is not just and become one. It is not just that. It is more than और that. मेरे प्यारो, जो पति पत्नी एक आत्मा में व एक तन में होते हैं व एक शरीर में होते हैं, शादी करते हैं, बस उतना में नहीं है शिमेल। They are one in God, in body and in spirit. और वे दोनों जो है परमेश्वर में एक है, शरीर में है और आत्मा में। The husband and the wife, they belong to God. They are his through this union. और मेरे प्यारो, जो पति और पत्नी दोनों परमेश्वर के हैं। All right. Now, we know this very famous verse, but let's read it. Genesis 2:24. आइए हम लोग, ये बहुत सुपरिचित वचन है, पद है, फिर भी आइए हम लोग इस पद को पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और 24वां पद। 2:24. दूसरा अध्याय 24वां पद। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 24वां पद। 24 पद। हाँ, 2:24। इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। All right. This verse is quoted in every marriage. There is no single marriage that happens without quoting this verse. और हरेक व प्रत्येक शादी में इस शब्द को जो है लिया जाता है। ऐसा कोई शादी नहीं होता जिस शादी में कि इस पद को नहीं पढ़ा जाता। Apostle Paul also quotes this verse in the epistle that he writes. और प्रेरित पौलुस भी इस पद को जो है अपने जो पत्री में जो लिखते हैं उसमें वो लाते हैं व लिखते हैं। And he calls marriage a profound mystery. और वो इस बात को कहते हैं कि शादी एक बहुत ही गंभीर रहस्य है। Why is he calling it a mystery? और क्यों वो इस शादी को एक रहस्य के रहस्य बोल करके वो बोलते हैं? Because two people, the boy and the girl, the man and the woman, come from two different homes. क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो लड़का और लड़की वो अलग अलग परिवार से आते हैं। They come from different family backgrounds. और वे लोग अलग अलग परिवार के जो पृष्ठभूमि से वे लोग आते हैं। They come from different habits. और वे लोग अलग अलग आदतों से वे लोग आते हैं। They are used to different lifestyle.
और वे लोग अलग अलग जीवन को वे लोग व्यतीत करने वालों में से हैं। And through marriage, they get united and they become one. They understand one another. They support each other and they fuse into not two different people, but one person. That is a mystery which Apostle Paul is saying. और मेरे प्यारो, वे लोग भले ही अन्य जाति से व अलग धर्मों से वे लोग आते हैं, मसीह में आते हैं, फिर भी वो लोगों का जो है मन एक ही विषय के प्रति लगता है, सोच और विचार एक जैसा होने लगता है। They are not related, but they come together and God makes them one flesh. That is the mystery to Apostle Paul. और मेरे प्यारो, वे लोग अलग अलग परिवार होने के बावजूद भी वो लोग एक तन हो जाते हैं, और वही है जो प्रेरित पौलुस कहते हैं परमेश्वर का एक रहस्यमय है। The most important thing why the Lord was so specific is when we read in that verse 15, he mentions that we have to bring up godly offspring. और 15 पद में बहुत महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर कहा गया है, ये है कि परमेश्वर के लिए हमें जो हमारा जीवन से उत्पन्न होने वाले लोग हैं, वो एक विश्वास योग्यता का व परमेश्वर का भय मानने वाले उत्पन्न होना चाहिए। Generally, in this world, we know as 1 + 1 is equal to 2. और हम इस संसार के रीत और रिवाज के अनुसार इस बात को जानते हैं, एक और एक को हम लोग यदि मिलाएंगे तो 2 होता है। That's how the people of the world treat a husband and a wife. They are two different people, but they're staying in one home through a marriage. और वे लोग ऐसा, संसार के लोग ऐसा कहते हैं, तो दोनों अलग अलग लोग हैं और उन लोगों का शादी हो रहा है। And they stay together under one roof. और इसीलिए वो लोग जो है एक छत के नीचे वो लोग वास करते हैं। But for a believer, it's not like that. For a believer, 1 + 1 is 1. It is not 2, it is 1. और लेकिन विश्वासियों के लिए एक को एक में हम लोग जोड़ेंगे तो एक ही है। And it's important that this unity is required to bring up godly offspring. That's what we read in verse 15. और ये जो दोनों का एक तन होना बा दोनों मिलकर के एक होने से क्या होता है ना, एक परमेश्वर के भय मानने वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं। I will read this verse 16 and I will close. I'm sorry it's taken 5 minutes more. My apologies. I'll read verse 16 and I will close. और 16 पद को पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। मैं 5 मिनट ज्यादा लिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अंकल, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। Please take, uncle, please take. Go ahead, verse 16, Malachi chapter 2, verse 16. आइए हम लोग दूसरा अध्याय उसका 16 पद को भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। You see, the Lord is saying, I hate divorce. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, ना त्याग देना मैं घृणा करता हूं। You see, we have seen this is the third strong word which the Lord is using to the people of Judah. और तीसरी बहुत कठिन वचन व पद को परमेश्वर इस्राएल यहूदा के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। God hates divorces. परमेश्वर जो है ऐसा त्याग देने वाले विषय को परमेश्वर घृणा करता है। But God loves marriages. लेकिन परमेश्वर शादी से प्रेम रखता है। And it is his intention, his purpose, his institution that a man and woman should join together and be married in life. और ये परमेश्वर की नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर यही चाहता है कि एक जो लड़का और लड़की, बा स्त्री और जो पुरुष है, वे एक तन में आ जाए, शादी करें। You know why God hates divorce? क्या क्यों परमेश्वर जो है त्याग देने से परमेश्वर नफरत करते हैं, क्या आपको पता? Because marriages end because of sin. मेरे प्यारो, शादी जो है टूट जाता है इसीलिए कि पाप के कारण। Right.
When God created everything in the Garden of Eden, He created everything with a positive purpose. It was not for man to disobey and commit sin, but He created everything as right, as pure, and as holy. That is how He created it. और मेरे प्यारो, जब परमेश्वर ने इस संसार को सृष्टि किया, एदन वाटिका में जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ बनाया, और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था वो पवित्र शुद्ध करके परमेश्वर ने बनाया था. But sin came and messed up everything of God's plan. और परमेश्वर के योजना में पाप आ करके सब कुछ जो है मिलावट कर दिया. And so marriage also is a holy institution which God has instituted or created. Sibir? Hello? Sibir, are you there? Okay, carry on. All right, so what I said is, marriage is also a holy institution which God has created for mankind. मनुष्य जाति के लिए या शिविर? शिविर, are you there? सर नहीं है वो, शायद उनका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. Okay. Okay. All right. So just a few minutes and I will close. It's a signal for Okay. me to close. He came again. It's come. Okay. Sibir, are Yeah, you there? Can you hear me? network issues. Yes, uncle, I'm there now. I think Network issue. it's a signal which the network is giving to me saying, Sam, stop here. It's time. So I think that's a signal. I got. No. All right. Okay. No. All right. So just a few more minutes and I will close. So marriage is also an institution which God created for mankind. I think we lost him again. So let me close here. I think I finished. And God willing, if there's anything more, I will cover it in the next class. So I'm stopping here. And I He's hope there, uncle. the Lord has Are you there, Sibir, now? spoken to us. Yeah, I'll Sibir, close are you it there now. Yeah, I'm there, but you know, I'll net close it. Can you close the No video? problem. No problem. I will close it now, but